ఇక లోక్సభలో వందే మాతరంపై చర్చ ఉండబోతోంది. దాదాపు 10 గంటల పాటు వందే మాతరంపై చర్చ ఉండాలని నిర్ణయించారు. అయితే మొదటి వక్తగా ప్రధాని మోడీ ఈ చర్చను ప్రారంభించనున్నారు. రెండో వక్తగా రాజ్నాథ్ ఈ సభను ప్రారంభించబోతున్నారు. అలాగే 150వ జయంతి సందర్భంగా వందే మాతరానికి ఈ చర్చ ఉండబోతోంది. के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री सुकांत मजुमदार। Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the table of the House paper listed against his name at serial number 3 of the list of business in Lok Sabha for today, that is the 8th December 2025. आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री शोभा कारंद लजे। स्पीकर सर, शोभा जी, आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against serial number 6 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 श्री हर्ष मल्होत्रा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, 377 के अधीन जो मामले सदन में उठाने हैं, मैं उनको सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता हूं। प्लीज रख दें सब। आइटम नंबर 8 श्री रंगा अप्पा बड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथाशक्ति देश के में और सौर और परियोजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन विषयक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 18वीं लोकसभा के 10वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 श्री रंग अप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 3 विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्री राजीव राय। माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध शिक्षा मंत्रालय से संबंधित उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों और संस्थानों एनटीए, एनएसई प्रारूप यूजीसी विधिनियम, ICHR, ICPR, ICSSR, IIS शिमला और ओरोविला फाउंडेशन की समीक्षा के संबंध में शिक्षा, महिला, बाल कल्याण, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 371वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 श्री बी मेहताब। So I beg to lay the final action taken statements, Hindi and English version of the government on the recommendation contained in chapter 1 of the following reports of the committee. 14th report of 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in first report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprise and Investment, and Public Asset Management. 15th report of 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in second report of the Standing Committee on Finance on demand on grants 24-25 of the Ministry of Finance, Department of Revenue. 16th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Finance 24-25 in action taken by the government on the observation recommendations contained in third report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Corporate Affairs. 17th report
18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in 4th report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Planning, Niti Aayog. 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the recommendations contained in on the 5th report of 18th Lok Sabha on demand for grants 24-25 of the Ministry of Statistics and Program Implementation. Item number 12, Shri Brajmohan Agrawal. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने तथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम सदन में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये गीत उस युग में आशा की ज्योति बनकर उभरा जब देश गुलामी के अंधकार से जूझ रहा था। ये गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने का साहस दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहते हुए अपने अंतिम क्षणों में भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे और मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज हम उन याद अज्ञात सभी वीरों को प्रणाम करते हैं जिनके बलिदान ने वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बना दिया। वंदे मातरम की ऊर्जा आज भी उतनी प्रखर है जितनी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में थी। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर अपने विचार सदन को साझा करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा कालखंड है जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने
उजागर हुए हैं। अभी अभी हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्वक मनाए हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है। और अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस भी मनाया। और आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है।